ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसा सोच रहे होंगे कि ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बार के सीएसआई के लिए प्रिपरेशन लेंगे जो 2024 जून में होने वाला है। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़, that is the whole course which costs 33,999 is now available at a price of 11,665. All you have to do is to use the promo code Sourav, SOURAV, which is my name, to avail this offer. So do hurry up because it's a limited time offer. Thank you very much. And now we will going to solve the multiple expansion and dielectric polarization problems. So let me show you some very good questions from this chapters. Okay, so basically, as you know, that questions are quite frequent from this portion, but in the previous 1 2 years, like they are not giving much questions from this side. So chances बहुत ज़्यादा है कि इस बार के दिसंबर के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखें। ठीक है, उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं तुम लोग को लिखा देना चाहता हूँ। वो फॉर्मूलाज कुछ ऐसे हैं कि अगर मान लो तुम लोग if you're talking about the multiple expansion, then it goes like, suppose I have some arbitrary configuration और यहाँ पे हमने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर किया है। इस वॉल्यूम से एट डिस्टेंस r I wish to find out the potential। ये हमारा एक सेकंड, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो मान ली ये जो पॉइंट है पी पॉइंट मुझे पोटेंशियल निकालने हैं, और ये जो है दैट इज माई origin O with respect to this d tau is my volume element जिसके लिए पोजीशन वेक्टर है r dash। ये है हमारा r, तो ये तुम्हारा हो जाएगा this r that is r minus r dash। this thing will happen। I think ये चीज तुम लोग को पता है। अब अगर ये तुम लोग को पता है तो we can write down the potential field at the point r by the formula that V of r is actually equals to 1 by 4 pi epsilon naught 1 divided by 4 pi epsilon naught, then summation of n equals to 0 to infinity, n equals to 0 to infinity 1 divided by r to the power of n plus 1 integration of r dashed to the power of n into Pn of cos alpha, Pn of cos alpha into rho of r dashed, rho of r dashed into d tau dashed. That's basically my formula. Now you put n equals to 0 here, you will get the monopole moment. You put n equals to 1, you will get the dipole moment. You put n equals to 2, you will get the quadrupole moment. You put n equals to 3, you will get the octuple moment. So by this way the formulas can be generated. No issues with that. So we can see that for dipole moment this formula would become 1 by 4 pi epsilon n equals to 1. तो अगर 1 लिखे तो 1 by r square आ जाएगा। यहाँ पे r dashed to the power of 1. Fine. P1 of cos alpha equals to cos alpha. So r dashed cos alpha. R dash was being taken as r dot r dash. Now that r और यहाँ पे जो potential है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught potential, that r into this rho can be taken as like p dot r, and rho can be taken as your dipole moment. So for dipoles we can write for, just hang on,
dipole contribution, if I wish to know, it would become equals to V1 of R. V0 of R is the monopole contribution. That is 1 divided by 4 pi epsilon naught. तुम्हारे यहाँ पे आएगा 1 by R square into rho of R dash into Tn of cos alpha. R dash means R dash cos alpha into rho of R dash eta dash. R dash cos alpha rho of R dash into theta dash. इंटीग्रेशन, दैट्स ऑल आई कैन राइट. अगर ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो जरा मुझे यहाँ पे बताइए. if I can write it over here if I can write it over here, then r dash cos alpha into theta dash. R dash cos alpha is my as p dot r. इसको लिख सकते हैं p dot r divided by this angle is actually alpha. P dot r divided by 4 pi epsilon naught r square. So P dot r is equals to my cos alpha, or rather you can write, if I'm saying r cap, it should be r cap. So P is along this direction. I'm taking r dashed. This is P. This is r vector. R dash vector r vector. So P dot r cap is basically my PR cos alpha by 4 pi epsilon into r square. Now from this position, it's very much clear that the potential is depending upon 1 by r square. Usually potential depends upon 1 by r. So this is an example where the potential depends upon 1 by r square. अच्छा, यहाँ पे अगर हमारा पोटेंशियल 1 by r square के ऊपर डिपेंड करता है तो ये किसका कंट्रीब्यूशन है? डायपोल कंट्रीब्यूशन है. अगर सेम कंट्रीब्यूशन आता तुम्हारे क्वाड्रुपोल से तो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? 1 by r क्यूब के ऊपर. ऑक्टापोल के लिए 1 by r to the power of 4 के ऊपर. ऐसे करते ये चीज जाता है. यहाँ पे जिसका नाम मैंने p दिया है, that p is actually defined as integration of r dashed vector rho of r dashed into d tau dash. That's my dipole moment. This is called dipole moment. In the similar manner, you can also calculate the rest of the moments. No issues. But हम लोग अभी थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का okay. Fine. This is the question. So let me tell you about it. देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि the question says consider a physical electric dipole consisting of two equal and opposite charges. Consider a physical electric dipole. A physical electric dipole. Consider a physical electric dipole consisting of two equal and opposite charges. Consisting of two equal and opposite charges. Class Q located at 0 0 a by 2, 0 0 a by 2, and minus Q located at
0 0 minus a by 2, 0 0 a by 2 and 0 0 minus a by 2. Now I can say find potential at a point, potential at a point, find potential at a point r theta and phi to the order r to the power of minus 4, r to the power of minus 4 due to this dipole, due to this dipole, or I should say dipole, due to this charge configuration. Charge configuration. Fine. कैसे करोगे? देख पहले तो इसका फिगर बनाना बहुत जरूरी है. तो basically what I can do is that I can just draw 2 point charges. One is ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. एक चार्ज मेरा यहाँ पे है, एक चार्ज मेरा यहाँ पे है, एक चार्ज मेरा यहाँ पे है. ये दोनों चार्जेस हैं. ठीक है. अब देख इस चार्ज के लिए अगर हम लोग बात करें तो देयर इज वन पॉइंट P which is over here. तो हम लोग कोशिश कर लें कि इस पॉइंट में हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे. ये जो पॉइंट है दैट्स माय ओरिजिन O, दैट्स माय ओरिजिन O. अब ये मेरा यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है दैट्स माय a by 2. यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है दैट्स अगेन माय a by 2. ठीक है बेटा. अच्छा यहाँ से ये तो बेसिकली ओरिजिन है. तो ये अगर मैं इस तरफ खींचूं, इसको मैं अगर यहाँ से इस तरफ खींचूं तो दिस वन विल एक्चुअली hang on, this one will actually have an angle theta which is the polar angle theta. That's theta which is basically the polar angle theta. Fine. And that vector is basically my r. This is my r vector and this is the polar angle theta. That vector is r, this is the polar angle theta. Now we can write down. You stop here. The first thing is V of r क्या हो जाएगा पोटेंशियल यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे हम लोगों ने बताया था. 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. मान लो यहाँ पे मैंने जो चार्ज रखा है दैट्स माय प्लस q, यहाँ पे जो चार्ज रखा है दैट इज माइनस q. 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इस चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या है? अगर ये पॉइंट तुम्हारा B है, ये पॉइंट तुम्हारा A है, ये पॉइंट तुम्हारा B है, ये पॉइंट O है, तो AP यहाँ पे BP. 1 by 4 pi epsilon naught चार्ज Q डिवाइडेड बाई AP. ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो माइनस चार्ज Q डिवाइडेड बाई इस चार्ज से इसका डिस्टेंस दैट इज BP. फाइन. ये ऐसा हो जाएगा. अब तुम लोग खुद मुझे बताओ कि 1 by AP को तुम लोग क्या लिख सकते हो? 1 by R1 को यूजुअली जो इसको लिखने का तरीका होता है दैट इज हम लोग को पता है कि 1 by R का जो फॉर्मूला आता है, जो फंक्शंस आते हैं दैट इज दिस डिस्टेंस दैट इज R dashed and this distance that is R and this is R minus R dashed. So 1 divided by R minus R dashed is equals to 1 by or summation of n equals to 0 to n R dash to the power of n by R to the power of n plus 1 into Pn of cos theta. That's all we need. तो यहाँ पे R dash से एक R को बाहर कर लेता हूँ. चलिए ये वाला R बाहर रह गया तो summation of n equal to 0 to infinity हो जाएगा. R dash to the power of n divided by R to the power of n into Pn of cos theta. सही बात है बेटा. Theta is the angle between उस position of the charge and the R vector. Very good. मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया. Similarly तुम मुझे बता सकते हैं 1 by BP का वैल्यू क्या है?
देख 1/bp भी तेरा आ जाएगा 1/r। 1/bp तेरा क्या आएगा भाई? 1/bp तेरा आ जाएगा 1/r समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी r टू द पावर ऑफ n। हालांकि यहाँ पे ये जो है r टू द पावर ऑफ n है। r डैश बेसिकली और r डैश क्या है? यहाँ पे जो r डैश था वो r डैश है मेरा a/2, तो a/2 टू द पावर ऑफ n। यहाँ पे जो r डैश क्या है भाई? a/2 है, तो a/2 मतलब 2r लिख देता हूँ, टू द पावर ऑफ n कर देता हूँ। इसको भी एक ही बार लिख देता हूँ, बार बार फिर चेंज करना पड़ेगा। a डिवाइडेड बाई 2r टू द पावर ऑफ n, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको। देन pn ऑफ क्या लिखूं जरा यहाँ पे देख, ये जो है ये वेक्टर r है, ये वेक्टर तुम्हारा r डैश है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई? ये टोटल 180 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? बेसिकली ये जो एंगल है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यू कैन आल्सो से इट लाइक pn ऑफ माइनस cos थीटा, दैट आई कैन से, because it's making an angle in the opposite direction. Cos of pi माइनस थीटा क्या होता है? cos of pi माइनस थीटा मतलब 2 into 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा होगा, लेकिन 2 into 90 मतलब यहाँ पे माइनस थीटा, सही क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो इसलिए माइनस cos थीटा। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल हो जाएगा cos of pn of cos pi माइनस थीटा, pn of cos pi माइनस थीटा मतलब माइनस cos थीटा, तो वहां से ये चीज आ रहा है। फाइन, अब हमारे पास AP है BP है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिख देता हूँ अगर कुछ बच्चे को समझने में दिक्कत हो रहा है तो बेटा यहाँ पे देख लो, ये जो एंगल है ये एंगल तुम्हारा, ये टोटल एंगल 180 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो ये क्या होगा? पाई माइनस थीटा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा का मतलब है माइनस cos थीटा, सही बात है। देखिए अब यहाँ पे देखो pn ऑफ माइनस एक्स जो तुझे बताना है, दैट इज pn ऑफ माइनस एक्स लेस देन द पॉलिनोमियल is minus 1 to the power of n into pn of x। ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए। pn of minus x is equals to minus n to the power of n into minus 1 to the power of n into pn of x। अच्छा, ऋषिकेश इज ऑन द क्लास, ओके। तो अगर ये चीज हमारे पास यहाँ पे है तो भाई जरा यहाँ पे देख, minus 1 to the power of n into pn of x, that thing we can write। अब अगर ये चीज हमारे पास पता है तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे? इन दोनों चीजों को ऐड कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल मेरा क्या आएगा भाई? देयरफॉर जो टोटल पोटेंशियल होगा इन दोनों चार्ज के लिए इस पॉइंट पे, वो होगा हमारा v ऑफ r वेक्टर, सही बात है। 1 बाय q तो बाहर ले सकते हो तुम, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय ap माइनस 1 बाय bp, 1 बाय ap 1 बाय bp में 1 बाय 4 पाई 1 बाय r तो कॉमन है, हम लोग देख पा रहे हैं कि a बाय r टू द पावर ऑफ n भी कॉमन है, और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि pn ऑफ cos थीटा भी कॉमन है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा सजा के लिख सकता हूँ। तो फाइन, अगर इसको हम लोग लिख रहे हैं तो एक 1 बाय r को बाहर लिख दो, फिर समेशन से शुरू कर दो। 1 बाय r बाहर रख दिया, समेशन लिख रहे हैं, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा फिर? a बाय 2r टू द पावर ऑफ n। देख यहाँ पे है pn ऑफ cos थीटा, यहाँ पे pn ऑफ माइनस cos थीटा, क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 टू द पावर ऑफ n इनटू pn ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पे pn ऑफ cos थीटा को बाहर ले लो, बड़ी अच्छी बात है सर। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर ऑफ n ऐसे लिख सकते हैं। तो जरा तो खुद से देख ले, q by 4 pi epsilon naught into r हो गया, समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a by 2r टू द पावर ऑफ n, यहाँ पे pn of cos था, अच्छा दिस माइनस दिस कर, ठीक है। तो यहाँ पे pn of cos था, यहाँ पे था pn of माइनस cos थीटा, जिसको लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर ऑफ n pn of cos थीटा। तो pn of cos थीटा कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर ऑफ n हो गया काम खत्म, ठीक है। 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर ऑफ n।
अब यहाँ पे जो चीज हमारे पास आया है, यहाँ पे देखो तुम लोग इसके साथ क्या कर सकते हो, if there is anything you can do। अगर हमारा मान लें कि n एक इवन नंबर है तो -1/n क्या हो जाएगा, +1, तो 1 - 1 is 0, तो ये पूरा टर्म है, मतलब ये समेशन में जो जो टर्म्स n इक्वल टू इवन देगा उसके लिए वो टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब n इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म 0, n इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म नॉन जीरो, n इक्वल टू 2 के लिए ये टर्म 0, n इक्वल टू 3 के लिए ये टर्म नॉन जीरो, n इक्वल टू 4 के लिए टर्म 0। तो ये जो समेशन है, इस समेशन में सारे जो n इक्वल टू इवन टर्म्स है वो नहीं रहेंगे। कौन कौन से टर्म्स रहेंगे, n इक्वल टू ऑड जो टर्म्स है वही रहेंगे, क्योंकि n इक्वल टू ऑड के लिए देख -1/n क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 से मतलब 2, तो सारे ऑड टर्म्स जिंदा रहेंगे सर, लेकिन जो सारे इवन टर्म्स है वो खत्म हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे, क्योंकि -1/n, अगर n इवन है तो -1/n तुम्हारा क्या हो जाएगा, +1, तो 1 - 1 0। तो यहाँ पे तो लिख सकता है q डिवाइडेड बाई 4πε0 into r summation over n equals to सारे odd terms like 1 3 5 dot 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 dot, यहाँ पे a by 2r to the power of n into, अच्छा यहाँ पे 2 आ जाएगा फिर odd terms के लिए, pn of cos थीटा। बताओ सही है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब उन लोगों ने पूछा है कि हमें कहां तक निकालने हैं इसके आंसर, सर हमें निकालने हैं यहाँ पे r टू द पावर ऑफ -4 तक। तो सर यहाँ पे अगर हम लोग n इक्वल्स टू 0 पुट करें, 0 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि n ऑड है, तो n इक्वल टू अगर 1 पुट करें तो यहाँ पे देखो r टू द पावर ऑफ 1 बाहर आ रहा है, तो r स्क्वायर डायपोल मोमेंट सर्वाइव कर रहा है। n इक्वल टू 2 पुट कर सकता है, नहीं इवन है, n इक्वल टू अगर 3 पुट करें तो सर बाहर एक r है, अंदर में नीचे r टू द पावर ऑफ 3, तो r टू द पावर ऑफ 4, तो पहले दो टर्म्स लिख तो काम। तो सर फर्स्ट टर्म जो आएगा आपका वो हो जाएगा सर q बाई 4πε0 इंटू r, q बाई 4πε0 इंटू, यहाँ पे तो r है ही, यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 लिखो तो क्या आएगा, 2a बाई 2r, 2 काट दो तो a डिवाइडेड बाई r इंटू, अच्छा p1 ऑफ cos मतलब cos थीटा, तो 2a cos, अच्छा a cos थीटा डिवाइडेड बाई r, a cos थीटा डिवाइडेड बाई r, तो qa cos थीटा बाई नीचे r स्क्वायर, ये हमारा डायपोल मोमेंट है भाई, मतलब डायपोल कंट्रीब्यूशन है, क्यों जो तुम्हारे n इक्वल टू 1 के लिए आ रहा है। देख तो यहाँ पे ये टर्म को किसके ऊपर वेरी कर रहा है, 1 बाई r स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। सिमिलरली और एक टर्म यहाँ पे बताओ, ऐसा ही एक टर्म यहाँ पे बताओ q, तो जो n इक्वल टू 3 के लिए आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे a क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, है ना, तो 2 से 8 को काट रहा हूँ 4 आ गया, तो यहाँ पे 16 होगा। अच्छा pn ऑफ cos थीटा क्या आता है, pn of cos theta क्या आता है, pn of p3 of cos theta क्या आ जाएगा, p3 of cos theta is equals to 5 cos square theta minus 3 cos square theta by 2, तो यहाँ पे 2 है, अच्छा यहाँ से 8 4 है, तो 4 4 16 2 32, तो q a to the power of 3, q into a to the power of 3 whole divided by देख 32 pi epsilon naught r to the power of 4 into यहाँ पे है तेरा 5 cos cube theta minus 3 cos थीटा, ये आ रहा है तुम्हारा। तो देख ले भाई, ये हमारा डायपोल कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा ऑक्टापोल कंट्रीब्यूशन है, डायपोल कंट्रीब्यूशन ऑक्टापोल कंट्रीब्यूशन, मोनोपोल कंट्रीब्यूशन सर्वाइव नहीं कर रहा है, क्वाड्रुपोल कंट्रीब्यूशन सर्वाइव नहीं करेगा, डायपोल और डायपोल कंट्रीब्यूशन और तुम्हारा ऑक्टापोल कंट्रीब्यूशन सर्वाइव कर रहे हैं इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये बहुत सही था, बहुत सही क्वेश्चन था। ऐसा ही एक क्वेश्चन तेरे सीएसआई नेट में आया था, जो क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आ जाओ, ऐसा ही एक क्वेश्चन तेरे सीएसआई नेट में आया था, और मैं देखता हूँ कि तू कैसे उसको सॉल्व कर पाता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड टेल यू कि क्या था वो क्वेश्चन। देख भाई, ऐसा ही एक क्वेश्चन तेरे कहाँ पे आता है, तो सीएसआई नेट में आता है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, तो खुद से थोड़ा सा ट्राई कर। क्वेश्चन में बोला गया है, देख देख देखो क्वेश्चन में ये बता दिया गया है, इट्स सेड इन द क्वेश्चन दैट let us consider a charge distribution, let us consider a charge distribution, a charge, hang on,
a charge distribution, that is, what does it say? Minus 2q at 0, 0, 0. नो, ये वाला प्रॉब्लम नहीं, ये वाला प्रॉब्लम नहीं, वो एक इमेज का प्रॉब्लम था। रुक जाओ, प्रॉब्लम शायद बाद में है। मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ वो एक इमेज का प्रॉब्लम था। दिस वन इज फाइन, बट the problem I'm talking about was NET 18. Hang on. ये वाला है, ये वाला है। मिल गया। क्वेश्चन में बोला है 2 point charges plus 2q and minus q are kept at point. 2 point charges plus 2q and minus q are kept at point with Cartesian coordinates at point with points with Cartesian coordinates. एक को तो रखा गया है 1 0 0 पे, 1 0 0 पे, दूसरे को रखा गया है एंड 2 0 0 पे। बहुत अच्छी बात है। respectively in front of an infinite grounded conducting sphere, in front of an infinite grounded conducting sphere, in front of an infinite grounded conducting sphere, not ground conducting sphere, infinite ground conducting plane at x equal to 0. बड़ी अच्छी बात है। Potential at x 0 0 for x is 0 greater than 1. Find potential, or rather potential at x 0 0 for x is very much greater than 1, depends on x के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? एज ऑप्शन ए में बोला गया है x to the power of -3, बी में बोला गया है x to the power of -5, सी में बोला गया है x to the power of -2, डी में बोला गया है x to the power of -4। ये हमने बात कहा है इसके ऊपर, ठीक है बच्चों, ये हमने कहा है। अगर ये चीज हमारे पास है, if we have this thing, and this is a question from CSIR June 18, this is a question from CSIR June 18, ये क्वेश्चन कब का है? दिस इज CSIR NET जून 18 का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली लोग क्या करते हैं बेटा, 1/x² मतलब डाइपोल पोटेंशियल, 1/x³ क्वाड्रुपल कंट्रीब्यूशन, 1/x⁴ क्वाड्रुपल, 1/x⁴ ऑक्टापल कंट्रीब्यूशन। अब यूजुअली तो हमारे पास डाइपोल पोटेंशियल निकालने का भी फॉर्मूला है, क्वाड्रुपल निकालने का भी फॉर्मूला है, तो क्वाड्रुपल तक लोग निकालते हैं, फिर देखते हैं कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता तो बोलते हैं ठीक है ऑक्टापल के ऊपर शार्ट करेंगे, फिर ऐसा कहते हैं। लेकिन ऑक्टापल पोटेंशियल अगर इस प्रॉब्लम के लिए हाथ से निकालने जाओगे तो बहुत मुश्किल है, मतलब जो यूजुअल मेथड है इंटीग्रेशन वगैरह करके। हमारे पास एक दूसरा मेथड है जो इन जनरल प्रोसेस है, उससे हम लोग देखेंगे कि ऑक्टापल मेथड से ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ऑक्टापल पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा। ये नॉट ओनली ऑक्टापल के ऊपर के पोटेंशियल्स भी निकाल सकते हैं उस मेथड से। कैसे? मैं सॉल्व करने जा रहा हूं।
फर्स्ट वो तो थोड़ा सा तेरे को चाहिए, मेथड ऑफ इमेजेस थोड़ा सा चाहिए। यहाँ पे देख, मेरा ये मान ले एक्स एक्सिस है भाई, देख ये जो मेरा है ये मेरा एक्स एक्सिस है, देख ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई। इस एक्स एक्सिस के सामने मैंने एक मिरर रखा है, कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0, ये मैंने x इक्वल टू 0 पे मिरर कर दिया, x इक्वल टू 0 पे। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने चार्जेस रखे, एक चार्ज मैंने रखा है यहाँ पे, एक चार्ज मैंने रखा है यहाँ पे, और ये चार्जेस कहाँ कहाँ प्लेस किए गए हैं भाई, बोला गया एक चार्ज को रखा गया है विद द कोऑर्डिनेट्स 1 0 0 एंड 2 0 0, एक को 1 में रखा गया, एक को 2 में रखा गया। अच्छा 1 में किसको रखा है, 2q को, 2 में किसको रखा है सर, -q को, वेरी गुड। इसको रखा है 2q, यहाँ पे रखा है -q। ये है x इक्वल टू 1 में, ये है x इक्वल टू 2 में। तो भाई इसके लिए इमेज चार्जेस कैसे आएंगे सर, इमेज चार्ज बहुत आसान है। इसके लिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 में एक इमेज चार्ज आएगा सर, जो होगा मैग्नीट्यूड -2q का, जिसका पोजीशन होगा x इक्वल टू -1। इसके लिए, इस बेचारे के लिए यहाँ पे एक इमेज चार्ज आएगा सर, जिसका मैग्नीट्यूड होगा सर +q, और उसका पोजीशन होगा x इक्वल्स टू -2। अब ये हमारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इन दोनों चार्ज की वजह से होगा, और इस प्लेन में जो तुम्हारा इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से होगा। बट प्लेन में जो इंड्यूस चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत टफ होता है, तो हमने क्या किया, इंड्यूस चार्ज के जगह पे एक इक्विवेलेंट इमेज चार्ज है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट हो या इसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इन चार्ज, ये जो चार चार्जेस हैं, इन चार चार्जेस की वजह से, इन 4 चार्जेस की वजह से होगा। तो जरा आप तुम लोग मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए हमारा, अच्छा यहाँ पे देखते टोटल चार्ज क्या है, +2q -2q 0, +q -q 0, टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0। इसका मतलब मोनोपोल मोमेंट इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो मोनोपोल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर मोनोपोल, मोनोपोल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 0 हो जाएगा, मोनोपोल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। डायपोल कंट्रीब्यूशन के बारे में बताऊं, डायपोल कंट्रीब्यूशन के बारे में तुम्हारा कोई ख्याल है? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं पता, सिर्फ ये फिलहाल के लिए कह सकते हैं मोनोपोल कंट्रीब्यूशन हमारा 0 हो जाएगा। वेरी गुड। बाकी के बारे में हम लोगों का क्या है, बाकी के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसके बारे में। I mean this problem is very nice question actually. So let's see कि इस प्रॉब्लम को उस तरीके से कैसे कर सकते हैं। सर हम लोग यहाँ पे सिंपली इतना कुछ देखेंगे ही नहीं, टोटल चार्ज 0 है, मोनोपोल कंट्रीब्यूशन 0 है, ये सब चीजें हम लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे भाई, वो फॉर्मूला होगा ऐसा कि 1/4πε0, कोई भी एक पॉइंट जो किसी एक आर्बिट्ररी पोजीशन पे है, मतलब एक्स एक्सिस में किसी एक पॉइंट पे है, तो वो होगा 1/4πε0, so within bracket q डिवाइड q1/r1, तो q1 हमारा q है, यहाँ से शुरू करते हैं सर, तो q डिवाइडेड बाई r1 -2q डिवाइडेड बाई -2q बाई r2 माइनस 2q डिवाइडेड बाई r2 प्लस q डिवाइडेड बाई r3 एंड माइनस q डिवाइडेड बाई r4। देख तो भाई तेरे को समझ में आया कि नहीं? एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है, तो ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से वो वेक्टर, मान लीजिए यहाँ पे एक वॉल्यूम होता, तो ये रहता कंडीशन, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे ये r डैश है, यहाँ पे ये r है, ये मेरा दिस r, तो ये जो r है वो सारे r मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस r, r1 r2 r3 r4, ठीक है। That is position vector of this point with respect to r, with respect to the origin and with respect to the point at which you have to find the potential, तो वो मेरा मान लीजिए इस तरफ। फाइन, इतना हमें पता है। अब हम लोग निकालेंगे वो वैल्यू कि क्या आने वाला है, ठीक है। चलो तो वैल्यू निकालते हैं। अच्छा
1/r क्या होगा, किसी को कोई आइडिया? एक एक करके सारे वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है भाई। पहले तुम मुझे बता 1/r कितना होगा, अगर तुम्हें कोई आइडिया है। 1/r1 कितना? सर इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 by small r summation over n equal to 0 to infinity. Then we write r dash to the power of n by r to the power of n into pn of cos alpha. Very good. तो 1 by r लिखो, 1 by r1 मतलब 1 by यहाँ से जिस पॉइंट पे तुम निकालना चाहते हो बेसिकली, तो सर हम लोग r पे निकालना चाहते हो तो 1 by r लिखेंगे। वेरी गुड। देन समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, हम लोग लेंगे सर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उस वो चार्ज कहाँ पे रखा गया है सर, 2 पे रखा गया है, तो x इक्वल टू, तो 2 है उसका r डैश, तो 2 डिवाइडेड बाय r टू द पावर ऑफ n, r कहीं पे भी हो सकता है, 2 बाय r टू द पावर ऑफ n इनटू pn ऑफ cos, क्या होगा, देख जो तेरा r है वो इसी x एक्सिस के ऊपर इस तरफ, तेरा पोजीशन वेक्टर r डैश इस तरफ है, दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, तो cos phi। वेरी गुड, ठीक है। cos phi इज इक्वल्स टू -1, तो ये -1 हो जाएगा, तो pn of -1 is equals to, again I have to tell you that pn of -1 actually is equals to -1 to the power of n, pn of -1 is equals to -1 to the power of n, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/r इंटू समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, सर 2/r टू द पावर ऑफ n इंटू -1 टू द पावर ऑफ n, क्योंकि pn ऑफ -1 इज -1 टू द पावर। अच्छा नेक्स्ट तुम लोग मुझे बताओगे कि 1 डिवाइडेड बाय r2 का वैल्यू क्या आ सकता है, r2 या पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज, तो सर 1/r लिखिए, समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी होगा, फिर 2/r टू द पावर ऑफ n होगा, नहीं इसका पोजीशन वेक्टर 1 है, तो r डैश इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 पे रखा गया नंबर। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेकर कंसर्न है, वी आर नॉट थिंकिंग वेदर इट्स प्लेस्ड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से उस चार्ज को जहां पे रखा है उसका लेंथ क्या है, तो यहां से यहां तक का लेंथ है x इक्वल टू 1, तो मैंने 1 लिखा, 1 डिवाइडेड बाय r टू द पावर ऑफ n इनटू pn ऑफ cos। अच्छा तुम लोग जहां पे निकाल रहे हो पोटेंशियल, वो x एक्सिस के ऊपर इस तरफ लाई कर रहा है, तो वो r x तुम्हारा इस तरफ है और इसका पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल फिर से पाई है, तो ये तुम्हारा cos pi is -1, तो pn of -1 is -1 to the power of n again, so I can write 1/r summation over n equal to 0 to infinity 1/r to the power of n into 1/r to the power of n into pn of -1, pn of -1 is -1 to the power of -1 to the power of n, we know this। Secondly, if I talk about this one, this is very easy, कैसे करेगा बोलते हो, 1/, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट्स r3, you will say 1/r समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, कहाँ पे रखा गया है सर, x इक्वल टू 1 पे, तो 1/r टू द पावर ऑफ n इनटू pn ऑफ, जिस तरफ तुम्हारा इस पॉइंट पे मैंने तो निकाला, तो यहाँ से ओरिजिन से ये तुम्हारा r है, ओरिजिन से ये तुम्हारा r डैश है, r डैश और r के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो pn ऑफ cos 0 होगा, pn ऑफ 1 is equals to 1, pn of 1 equals to 1, pn of cos 0 डिग्री जो होगा तुम्हारा 1/r समेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी 1/r टू द पावर ऑफ n into 1/r to the power of n, simply pn of 1 is equals to 1, 1/r to the power of 4 क्या, 1/r3 क्या होगा भाई, 1/r4 क्या होगा, 1/r समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, सर यहाँ पे तो इसको 2 पे रखा गया है, x इक्वल टू, तो 2 डिवाइडेड बाय r टू द पावर ऑफ n इनटू pn ऑफ अगेन 1 जो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही ये चीज हो जाता है भाई, तो जरा मुझे बताओ, यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को अगर वो फॉर्मूला पता नहीं है तो वो देख के सीख लेंगे, दैट इज pn of 1 equals to 1 हमेशा, and pn of -1 is equals to -1 to the power of n, लेजेंडर पॉलिनोमियल है, प्लीज इसको सीख के जाना, लेजेंडर पॉलिनोमियल कुछ फॉर्मूलाज तो पता होनी चाहिए।
तो देयरफॉर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा भाई, v ऑफ r वेक्टर would be v of r वेक्टर जो मेरे x की तरफ है would be actually equals to q divided by 4 pi epsilon naught into r। ठीक है, क्योंकि देख q by 1 by 4 pi epsilon naught था, यहाँ पे सारे में q है तो मैंने q को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे r1 r2 r3 r4 के एक्सप्रेशन में 1 by r 1 by r 1 by r है, तो मैंने 1 by r को कॉमन लेने के बाद जो मैं देख रहा हूँ क्या होगा, 1 by r1 में तुम ये टर्म्स लिख सकते हो, उसके साथ ही q आए तो q into summation over n equal to 0 to infinity 2 by r to the power of n। अच्छा, यहाँ पे हर जगह पे 1 by r to the power of n भी कॉमन है तो उसको भी कॉमन ले सकते हो, 1 by r to the power of n भी कॉमन है, तो पहले समेशन लिख दो फिर उसको देखना। पहले समेशन लिख देते हैं n equal to 0 to infinity 1 by r to the power of n कॉमन है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, क्या होगा भाई, पहले वाला है तुम्हारा 2 to the power of n into q, q को तो कॉमन ले लिया तो जस्ट ओनली 2 to the power of n into minus 1 to the power of 2 to the power of n into minus 1 to the power of n, दूसरा वाला नेगेटिव आएगा शायद। हाँ देखो यहाँ पे एक 2 है, 1 by r2 की तो कॉमन ले लिया, 1 by r2 का एक्सप्रेशन में कोई कुछ है ना, तो 2 by r to the power of n जिसको मैंने बाहर ले लिया है, फाइन, सो 2 into minus 1 to the power of n, सिंपली 2 into minus 1 to the power of n। फिर क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे फिर से +2 है, +2 है और यहाँ पे 1 by r to the power of n को तो पहले कॉमन ले लिया, 1 by r को भी कॉमन ले लिया है, सिर्फ +2 है सर और कुछ नहीं। लास्ट वाले के लिए क्या होगा, लास्ट वाला मतलब इसका माइनस क्यों कॉमन ले लिया, 1 by r4 में क्या है, 1 by r4 में से 2 by r to the power of 1 by r to the power of n into minus 2 to the power, सिंपली minus 2 to the power of n। अब जरा इसका एक्सप्रेशन मुझे बताओ कि अगर n का वैल्यू इवन होगा तो क्या होगा, अगर मान ली n इवन है तो ये हो जाएगा 2 to the power of n minus 2 to the power of n कट गया, n इवन 2 माइनस 2 तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो सारे n इक्वल टू इवन वाले जो टर्म्स है उसके लिए इस समेशन के सारे n इक्वल टू इवन वाले टर्म जीरो, मतलब ये जो तुम्हारा समेशन है जो n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है, इसके सारे वो n इक्वल टू इवन, मतलब n इक्वल टू 0 2 3 2 4 6 8 ऐसे वाले टर्म्स जो होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये समेशन के कौन से टर्म सर्वाइव करेंगे बेटा, इन समेशन के जो सारे ऑड टर्म्स है वो सर्वाइव करेंगे। Therefore हम लोग बोलेंगे कि ये समेशन हम लोग लिख सकते हैं q by 4 pi epsilon naught into r summation over n equals to 1 3 5 6 ऐसे जाएगा, और ये 1 by r to the power of n, अगर ऑड होगा तो यहाँ पे देख -1 to the power of n मतलब -1, -1 to the power of n मतलब -1, तो ये क्या हो जाएगा -2 to the power of n, नो हैंग ऑन, अगर n मान लो तेरा ऑड है तो -1 to the power of माइनस, तो -2 to the power of n माइनस, यहाँ पे इसका टू द पावर अगर माइनस ऑड है तो -1, तो +2 to the power of n +2 -n अगर ऑड होगा तो ये प्लस आ जाएगा। if n is odd, if n is odd this is minus to the power of n is odd this is plus to the power of n, cancel 2, अच्छा अगर n odd है यहाँ पे 2 to the power of n है, तो n इवन और ऑड के लिए देखना पड़ेगा अलग अलग से, ऐसे नहीं कह सकते कि सारे, मैं सोचा था ये वाला 1 है शायद, नहीं रुक जा, इस समेशन के टर्म्स देखने पड़ेंगे कैसे कैसे आ रहे, तो इस समेशन के टर्म्स पहला वाला जो होगा v0 ऑफ r जो मोनोपोल मोमेंट है, v1 ऑफ r जो डायपोल मोमेंट है, v2 ऑफ r जो क्वाड्रुपल मोमेंट है, प्लस v3 ऑफ r ऑक्टपोल मोमेंट है, प्लस v4 ऑफ r, ऐसे डॉट डॉट करके चल रहा है, ऑक्टपोल मोमेंट के बाद v4 ऑफ r, v4 ऑफ r, अब देखते हैं क्या आता है, प्लस और चला जाएगा डॉट डॉट करके,
तो इसमें हमारा जो मोनोपोल मोमेंट टर्म हुआ जहाँ पे n इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पे टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, तो पहला वाला टर्म 0 आएगा, प्लस डायपोल मोमेंट वाला टर्म क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट मतलब n इक्वल्स टू क्या है 2, n इक्वल टू 2 है तो सॉरी n इक्वल टू 1, 2 इंटू माइनस 2 माइनस यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1, तो ये प्लस 2 यहाँ पे इनका वाले तो 1 पुट कर दो, तो माइनस 2, डायपोल मोमेंट भी 0 आ रहा है, डायपोल मोमेंट भी 0 आ रहा है, प्लस क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होगा, n इक्वल टू 2 के लिए आएगा, तो n इक्वल टू 2 पुट करो, टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 2 इज प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 इज प्लस, वेरी गुड, प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, तो भाई क्वाड्रुपल मोमेंट वैनिश कर रहा है, क्वाड्रुपल मोमेंट वैनिश कर रहा है, प्लस क्वाड्रुपल मोमेंट वैनिश कर रहा है, तो ये वैनिश कर गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग n इक्वल टू 3 लेते हैं तो n इक्वल टू 2 लेते हैं तो वो हमारा क्वाड्रुपल मोमेंट है, n इक्वल टू 3 लेंगे तो टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स टू 8 माइनस माइनस यहाँ पे 3 लेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स टू 8, फाइन, सो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल्स आउट, माइनस 16 आ रहे हैं, n equals to 3 पे what I'm getting is minus 16. So 1 minus 2 into minus 1 to the power of n, 2 minus 2 into the power of n, n equal to 3 पुट कर रहे हैं, तो टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स टू 8, यहाँ पे माइनस आया, माइनस को वैसे वैसे रखते हैं, यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर ऑफ 3, अच्छा ये वाला प्लस, यहाँ पे माइनस था, माइनस 1 टू द पावर ऑफ 3 में प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये प्लस 2 होगा भाई, रुक जाओ, प्लस 2 यहाँ पे जाता था माइनस 8, तो माइनस 8 माइनस 16 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 12, ये माइनस 12 आ रहा है n इक्वल टू 3 के लिए, अगर माइनस 12 आएगा तो माइनस 12 को बाहर ले सकते हैं हम लोग, बाहर लेके लिख सकते हैं माइनस 12 को बाहर लेंगे तो 4 से कट के 3 आएगा, 3 बाई पाई एक्सेल नॉट r टू द पावर ऑफ, यहाँ पे इनका वैल्यू 3 दिया था, यहाँ पे आ रहा था r टू द पावर ऑफ 4, प्लस यहाँ पे लिखना 5 के लिए 0 आ जाएगा शायद, n इक्वल टू 3 लिया, n इक्वल टू 4 लेंगे तो 2 पावर 4 इक्वल्स टू 16, ऑफ कोर्स पॉजिटिव आएगा, फिर माइनस 2 इंटू यहाँ पे 4 ले रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, प्लस 2 यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 4 मतलब माइनस 16, ये भी 0 आ रहा है, नेक्स्ट वाला टर्म 0 आएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, तो भाई यहाँ पे देखो मोनोपोल मोमेंट वैनिशेस, डायपोल मोमेंट वैनिशेस, क्वाड्रुपल मोमेंट वैनिशेस, ऑक्टापोल मोमेंट्स आर वैनिश, तो सबसे जो like the lowest order term that is non-zero is my 1 by r to the power of 4. The lowest order term, the lowest significant term that is non-zero is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r to the power of 4. इसके ऊपर वाले जो टर्म्स होंगे उससे और छोटे छोटे होंगे, तो यही वाला टर्म, ये जो सबसे लोअर टर्म है, ये सबसे सिग्निफिकेंट टर्म है, मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म दैट इज नॉन जीरो, द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म दैट इज नॉन जीरो इज 1 by r to the power of 4. तो ये किसकी जैसे काम करेगा भाई, ऑप्शन डी, इट विल एक्ट एज एन ऑक्टपल, द कॉन्फ़िगरेशन is an octuple, डायपोल भी नहीं है, मोनोपोल भी नहीं है, क्वाड्रुपल भी नहीं है, ये ऑक्टपल है, क्योंकि वन लोएस्ट जो नॉन जीरो टर्म है इसके मल्टीपल एक्सपेंशन वो 1 by r to the power of 4 के ऊपर वैरी करता है, 1 by r to the power of 4 के साथ, दैट्स व्हाई इट्स एन ऑक्ट। बताओ कोई भी अगर क्वेश्चन हो इस प्रॉब्लम के ऊपर आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, बोल भाई अगर तुझे कुछ भी पूछना हो इस प्रॉब्लम के ऊपर तो मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन in your mind you can ask।
Any question in your mind, you can ask. Otherwise, I will end the class. Okay then. Thank you.